Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Fundamentals of Public Administration. Course code is MPA 406 and today is lecture number 24. Okay, as you know that before we move on to our today's topic of discussion, let's have a brief reflection of what we have discussed in our previous lecture. Okay, in our previous lecture we have talked about performance management. We have talked about different ways how to overcome poor performance in our organization. We have also talked in our previous lecture about how to increase efficiency and effectiveness of our employees. And this is really very important that we need to identify the root causes of poor performance. Like for instance, if an employee is not working up to the mark, or if his or her performance is not as per standards, so what is required? So the most important thing here is we need to find out that what are the root causes. So in order to do that, we conduct that training need analysis, or we call that skill gap analysis these days. So there are different methods. With the help of those methods, we can collect data about the poor performance of our employees. For instance, questionnaire, interviews, observation, experiments, and sometimes we go for simulation exercises. So these are some of the most popular methods, and with the help of these methods, we can identify the root causes, that what are the real reasons why the performance of our employees is not as per standards. Like for instance, we can send a questionnaire to our employees, and we ask the employee to fill that questionnaire and then tell us what are the real reasons of his poor performance. The other way is we conduct interview, because sometimes employees they have no idea why their performance is poor. So there is a need of conversation, there is a need of dialogue with that employee. So what the manager in public sector should do is let's have a dialogue, let's have an interview with the poor performer, and then in that interview manager and the poor performer, they discuss, and then they reach to a mutual conclusion that what are the actual root causes of the poor performance of that particular employee. And then there are other methods, like for example we talked about observation. Like for example, if we ask our employees, or if we interview them, or if we give them questionnaire, sometimes we are not able to identify the root causes. So there could be many reasons of it. So another very important method is of observation. Like for example, we can observe the performance of our employees. So this is another very good method. So in what I recommend here, that we need to focus not only on one method, we can use a combination of these methods. Like for instance, we can use questionnaires as well as we can go for interviews, or we can go for observation as well. So with the help of a combination of these methods, we are able to collect the primary data. And then we have the primary data, and then we go for the collection of the secondary data. And secondary data, जैसे कि हमने last lecture में बात की थी, we can collect from books, newspaper, magazines, internet, etc. So already जो data आपके पास available है market में different shapes में, that is called your secondary data. और जो data आप for the very first time आप collect कर रहे हैं अपनी specific problem के लिए, that is called your primary data. इन दोनों data को आप analysis करते हैं, then you move towards certain findings, and on the basis of those findings we move towards of course solutions. So let us move on towards our today's topic of discussion, and that is planning commission and planning development. So when we talk about the planning commission role and the planning development, here we need to discuss that why there is a need for planning. Okay, let me ask you a very simple question. What is planning? Like for example,
सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल इस वक्त आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ना इस कोर्स में आप जब इस वीडियो को देखने के लिए इस वक्त आप अपने मॉनिटर के सामने, अपने टीवी के सामने बैठे हुए हैं, तो आप ये बताइएगा कि आप कुछ प्लान करके बैठे थे या बगैर प्लान करके आप बैठ गए हैं। डेफिनेटली आपने प्लान किया होगा कि आई एम गोइंग टू स्टडी, नाउ आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्निंग के लिए आपने एक प्लान किया। अब आप मॉनिटर के सामने, एक टेलीविजन के सामने आप बैठे हुए हैं, यू आर वाचिंग एंड लिसनिंग। सो फॉर एवरीथिंग वी डू सम प्लानिंग. So planning could be like formal or informal. We can have short plans or long-term plans. But planning means what? Planning means that first of all we develop the objectives. What are the purposes? What we are going to achieve, what we want to achieve. So we develop our objectives. And the second step is we develop strategies to achieve those objectives. So in simple words, पहले आप देखते हैं कि आपने हासिल क्या करना है, आपके पर्पसेस क्या हैं, और उन पर्पसेस को हासिल करने के लिए आपकी हिकमत अमली क्या होगी, आपकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी. सो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग. So of course there is a need of planning, and I strongly believe that there are no two opinions on the significance of good planning. Now when we talk about persons who are working in the organization, the managers जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, so there are different kinds of managers. Like for example we have reactive managers and we have proactive managers. दोनों में difference क्या है? Reactive managers and proactive managers. जो रिएक्टिव मैनेजर्स हैं ऑफ कोर्स दे रिस्पॉन्ड. लाइक फॉर एग्जांपल कोई क्राइसिस आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चैलेंज आता है, एंड देन दे रिस्पॉन्ड, और रिप्लाई में दे डू समथिंग, और रिस्पॉन्स में दे टेक करेक्टिव मेजर्स. On the other side, when we talk about proactive managers, now proactive managers वो managers हैं who like forecast, who predict in advance कि आने वाले दिनों में, future में, coming days में, coming years में, coming weeks में, coming months में what are the possibilities, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. So एक situation analysis कर रहे हैं. Like for example they have already done that SWOT analysis of their organization and they are focusing on their competitors. So proactive managers जो हैं of course they are like good for the organization, and reactive managers of course इसमें definitely losses होने के ज़्यादा chances हैं organization को, क्योंकि sometime आपका जब आप respond करें किसी problem को, तो sometime it may happen that you are unable to solve the problem. बजाय ये कि प्रॉब्लम आप को रिस्पॉन्ड करें, इट इज़ बेटर कि आप प्रॉब्लम होने ही ना दें. आप प्रॉब्लम के होने से पहले ही उसको आइडेंटिफाई करके आप उसको मैनेज करने की कोशिश करें. एंड दिस इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी गुड प्रोएक्टिव मैनेजर. Now moving towards the functions of Planning Commission. Now there are different functions performed by the Planning Commission of Pakistan, and the first most important function is to prepare comprehensive national plan for socio-economic development of the country. So here when we talk about the socio-economic development of Pakistan, this is the major responsibility of the Planning Commission of Pakistan, that they prepare a comprehensive national plan. तो यहाँ पे ये चीज़ फोकस करने की ज़रूरत है कि प्लानिंग कमीशन जो है पाकिस्तान का, ये एक नेशनल प्लान तैयार करता है फॉर ऑफ कोर्स सोशल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए, और उसमें इट इज़ अ कम्प्रिहेंसिव प्लान. लाइक फॉर एग्जांपल तमाम हमारी सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, हमारी तमाम जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट जो हमारे एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के लिए, इंटायर पाकिस्तान के लिए सोशल डेवलपमेंट के लिए, और ऑन द अदर साइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक कम्प्रिहेंसिव प्लान प्रिपेयर किया जाता है. एंड प्लानिंग कमीशन का दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. Another very important function of Planning Commission of Pakistan is to formulate within the framework of national plan, of annual plan and annual development program, projects and programs of national development. So एक national plan के framework के अंदर रहते हुए they forecast that what are the
पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स, सो दे प्रिडिक्ट, दे फोरकास्ट, एंड एक वो उस चीज़ को फोरकास्टिंग को सामने रखते हुए, प्रिडिक्शन को सामने रखते हुए, देन दे प्लान ईच एंड एवरीथिंग। लाइक फॉर एग्जांपल एक डेवलपमेंट के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल आने वाले दिनों में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे प्लान इन ऑल एरियाज, एंड इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और उसमें पूरे पाकिस्तान को कवर किया जाता है। Another function of planning commission is monitoring the implementation of all major development projects and programs. Now this is really very important. आप जब कोई भी प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, अगर आप उसकी एडिक्वेट मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, अगर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो मुख्तलिफ इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पे अगर उसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा, उसको सुपरवाइज नहीं किया जा रहा, उसको इंस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, तो यू मे फेस सवियर प्रॉब्लम्स। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जाता है, एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। Another major function of Planning Commission is continuous evaluation of economic situation and coordination of economic policies. So this is really very important कि जो economic situation है पाकिस्तान की, उसकी एक continuous evaluation Planning Commission कर रहा है और एक coordination कर रहा है economic policies की। Now यहाँ पे क्या करते हैं कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी में क्या situation चल रही है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट आपका क्या चल रहा है, कौन से सेक्टर में रिसेशन आया, लाइक फॉर एग्जांपल पिछले दिनों में देखा कि एक फाइनेंशियल रिसेशन आया पूरी दुनिया में, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या हुआ। उसके अलावा एक ओवरऑल एक कॉन्टिन्यूस असेसमेंट की जा रही है कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी जो है उसके अंदर क्या फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उस तमाम को वो कॉन्टिन्यूसली एवेलुएट कर रहा है एंड देन कोऑर्डिनेट कर रहा है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए या डिफरेंट सेक्टर्स के लिए जो भी एक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन का काम जो है प्लानिंग कमीशन का है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट function of Planning Commission of Pakistan. Then examination and technical appraisal of development projects. तो अब आप बात करते हैं development projects की, of course ऐसे projects जो future रिक्वायरमेंट्स को सामने रख के प्रिपेयर किए गए। सो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको एग्जामिन करना, उसकी जो टेक्निकल अप्रेजल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप उसको हर एंगल से देख रहे हैं, आप उसको टेक्निकल अप्रेजल्स कर रहे हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फिजिबिलिटी है, उसकी परफॉर्मेंस को आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आप उसकी एक कंटिन्यूस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान। Now let's see the relationship of plan and projects. There is a complementary relationship between plan and projects. So projects are to plan what bricks are to building. So now you see that कि project और plan की वही relationship है जो किसी building के अंदर किसी ईंट की है। Now you see that कि किसी भी building के अंदर जो एक brick की value है, जो ईंट की value है, इसी तरह किसी भी प्रोजेक्ट के लिए और किसी भी प्लान के लिए दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ब्रिक्स और बिल्डिंग का है। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम प्लान्स बना रहे हैं वो प्रोजेक्ट के तमाम पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखें। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट यू रियली वांट टू अचीव। सो तमाम प्रोज एंड कॉन्स को सामने रखते हुए, तमाम ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए और जो बेसिकली आपका जो विजन है उसको सामने रखते हुए आप अपने प्रोजेक्ट्स को रन कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स प्लानिंग इज लाइक ए बैकबोन टू एनी प्रोजेक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन। A project follows a sequential process of beginning and ending, which is as follows. The first thing is project identification. It's a very important function that you need to identify कि आपका कौन सा project जो आपने करना है. So there are different areas, like for example आप agriculture में देख सकते हैं, आप industrial sector में देख सकते हैं, educational sector में देख सकते हैं. So different areas है, किस area में आपने project को run करना है. Of course project को run करने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर एक नीड हो. जब तक नीड नहीं होगी उस वक्त तक आप डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट को अगर आप रन करेंगे, इम्पोज करेंगे, तो डेफिनेटली वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं देगा. तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द
ग्राउंड रियलिटी नीड्स और नीड बेस्ड प्रोजेक्ट्स जब हम लेके आएंगे, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प पाकिस्तान ग्रो. द नेक्स्ट process step here is project study feasibility. Again very important part here. ठीक है, जब आप project study की बात करते हैं, feasibility की बात करते हैं, तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि A to Z एक फिजिबिलिटी बनाई जाए कि लाइक फॉर एग्जांपल कि तमाम देखा जाए कि इस प्रोजेक्ट के पर्पसेस क्या हैं, इस प्रोजेक्ट में रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, फाइनेंशियल रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, फिजिकल रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी. तो तमाम रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आप देख रहे हैं, आप उसके बजट्स बना रहे हैं, आप तमाम जो लोग उसमें काम करेंगे उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप डिफाइन कर रहे हैं. सो इट मीन्स दैट इन नटशेल वी कैन से दैट कि किसी भी प्रोजेक्ट की A to Z जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं उसको आपकी फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है या फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट स्टडी है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है. नाउ ऑफ कोर्स फिजिबिलिटी के बाद यू मूव ऑन टुवर्ड्स प्रोजेक्ट प्रिपरेशन. आपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, एंड ऑफ कोर्स आप प्रोजेक्ट अप्रेजल करना शुरू कर देते हैं, आप उसको एवेलुएट करते हैं. और एवेलुएट मींस के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले लाइक फॉर एग्जांपल प्री लॉन्च अप्रेजल्स भी हो सकते हैं कि आप अपने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि बिफोर इनिशिएटिंग एनी प्रोजेक्ट आप एक प्री अप्रेजल कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट को एवेलुएट कर सकते हैं बिफोर लॉन्चिंग दैट प्रोजेक्ट. Project approval is required of course from the top management, and then project implementation and monitoring, again a very important factor कि आपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, आप उसकी सुपरविजन करेंगे, एंड देन टू सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स. नाउ प्रोजेक्ट एवेल्युएशन, फाइनली यू गो फॉर प्रोजेक्ट एवेल्युएशन. आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑफ कोर्स यू वांट टू एवेल्युएट द प्रोजेक्ट कि एक्चुअली प्रोजेक्ट के अंदर क्या आपने पॉजिटिव क्या चीज़ थी, नेगेटिव क्या चीज़ थी. सो आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या इक्वेशन में क्या आया, लाइक फॉर एग्जांपल कि वेदर यू आर एबल टू अचीव योर टारगेट्स और नॉट. सो इफ़ यू आर एबल टू अचीव योर टारगेट्स, सो व्हाट वर द प्रोसीजर्स, और किन मेथड्स का ज़्यादा आपको एडवांटेज हुआ, किन मेथड्स का आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ. सो प्लस एंड माइनसेस जो हैं प्रोजेक्ट एवेल्युएशन में आपके सामने आ रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट process of project completion. Now talking about the provincial planning organization. So at the provincial level there is planning and development department, and planning and development is headed by the chairman P&D. The secretary P&D is the administrative head here. The chairman is assisted by a chief economist and members, and joint chief economist. Members are assisted by chief of section, and then each chief of section deals with one or more sectors of the provincial economy, that is agriculture, forestry, tourism, livestock, irrigation, industry, water supply, social welfare, population planning, education, etc. Now let us discuss the major functions of planning and development. So these are, as you see in the slide, these are the major functions of planning and development, and these are, the first one is to prepare annual development program in coordination with other departments. So this is really the most important function of planning and development, is to prepare the annual program in coordination with other departments. So this is really very important that you need to have a very strong coordination with other departments. If you are not in contact with other departments, what are the consequences? What do you think? Okay. If you are not in good contact with other departments, or if you do not focus on the feedback from other departments, of course you may move towards some like incorrect direction. So this is really very important to prepare a wonderful annual development program. This is really very important that you need to focus more on the coordination between different departments, or once you have a strong coordination between departments, of course you are focusing on feedback, and once you focus on the feedback, that means improvement.
to prepare 5-year and other development plans. Of course, this is one of the most important functions of planning and development, to prepare a 5-year plan and of course any other development plans as per requirements, and to coordinate external capital assistance. This is really another very important function of planning and development. Now let us move towards decision making. Now what is decision making? The process of examining your possibilities, comparing them, and choosing a course of action. Now this is really very important. So when you need a decision, so of course when there is a situation, there is a problem, there is a challenge, and you want to improve yourself, so there are different reasons for making decisions. And so according to researchers and philosophers, in decision making you examine your possibilities, कि what are the possibilities, what are the alternatives available. आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो what are the options available, क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं, प्रोसीजर्स क्या होंगे, डायरेक्शंस क्या होंगी, etc etc, and then comparing your possibilities, and then of course जब आप उसको कंपेयर कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि हर पॉसिबिलिटी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं, कि अगर आप कोई भी एक पॉसिबिलिटी, कोई भी सोल्यूशन आप ऑप्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स उसके प्लस एंड माइनसेस हैं. सो यू कंपेयर दी प्लस एंड माइनसेस ऑफ ईच पॉसिबिलिटी एंड देन चूजिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन. ऑफ कोर्स जब आप उसको कंपेयर कर लेते हैं तो उसमें से जो बेस्ट आपकी पॉसिबिलिटी है उसको आप चूज करते हैं ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. So these are the 6 C's of decision making, and these are called construct, compile, collect, compare, consider, and commit. Now we are going to discuss these 6 C's of decision making one by one. Now let us discuss these 6 C's of decision making. So this is also called as the decision making process, and the first C is construct. Construct a clear picture of precisely what must be decided. So this is really very important. जब भी आप एक डिसीजन लेने जा रहे हैं तो you must have a clear picture कि आप क्या decide करना चाह रहे हैं. So if you have a doubt, if you have a confusion, so that will create more problems. So this is really very important कि you must be clear कि आप क्या करने जा रहे हैं. आपके सामने एक clear पिक्चर होनी चाहिए कि आप किस किस्म का डिसीजन चाह रहे हैं, आप क्या, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. दैट मस्ट बी वेरी क्लियर एंड वी कॉल दैट अ कंस्ट्रक्ट. एंड देन कंपाइल. नाउ कंपाइल ए लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी मेट. ऑफ कोर्स आपने एक अपनी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बनानी है कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने पूरा करना है. लाइक फॉर एग्जांपल आपके वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी क्या नीड्स एंड वांट्स हैं, आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसकी क्या पोजीशन है, आपके जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं लाइक फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, उसकी क्या वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं या क्या अवेलेबिलिटी है वो आपने देखना है. एंड देन ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, कि जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं और डिफरेंट रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को आप देखते हैं कि वो किस हद तक है. सो व्हेन यू कंपाइल ए लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कि आप एक अपनी लिस्ट बनाते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने मीट करनी है. एंड देन वी मूव टूवर्ड्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन अल्टरनेटिव्स दैट मीट द रिक्वायरमेंट्स. तो अब आपने जो अल्टरनेटिव्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनके ऊपर आके एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं कि जो एक आपको बताती है इंफॉर्मेशन कि जो आपने अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो डेफिनेटली आप देखते हैं कि अल्टरनेटिव जो ज़्यादा बेहतर तरह से आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है उसी अल्टरनेटिव को आप कोशिश करते हैं कि उसी को आप ऑप्ट करें, उसी को लेके आप आगे जाएं. Compare alternatives that meet the requirements. Of course, ऐसे alternatives जो आपकी requirements को meet कर रहे हैं, जो आपके purposes को achieve करने में आपको help out कर रहे हैं, आप उनको देखते हैं, उसका एक comparison करते हैं कि comparison करने से आपको पता चलता है कि कौन सा alternative जो है वो आपके लिए ज़्यादा beneficial है और कौन सा alternative जो है आपके लिए कम beneficial है. Now the next is consider the what might go wrong factor with each alternative. So this is really very important
कि आप एक पॉसिबिलिटी ज़रूर अपने सामने रखें कि कुछ भी गलत हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो डेफिनेटली कंसिडर एवरी पॉसिबल consequence in this case, and then commit to a decision and follow through with it. Once you commit a decision, तो फिर आप उसको फॉलो करें, आप उसको बैकअप ना करें और आप उस डिसीजन के ऊपर आप अपनी हाई परसिस्टेंस शो करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. Now let us talk about different qualities of a successful decision maker. So we have wonderful decision makers in the world. So let us see that what are the benchmarks, what are the highest standards, what are the qualities that a good successful manager should have. So let us discuss those qualities. And the most important quality a successful decision maker should have is courage. Courage is of particular importance and involves the willingness to take the risk. Now this is really very important. We normally hear that higher the risk, higher the gains, lower the risk, lower the gains. So this is really very important that the manager should be a risk taker. But here I will say that this risk should be calculated. So you should calculate the risk, like for example, if I take this decision will have that much risk. If I take this decision will have that much risk. So you need to calculate the risk, and then once you calculate the risk, then you can move forward, and then you can choose the best alternative, you can choose the best solution. So that needs a courage, of course. And any person who has a courage, any person who has a competence, has a skill, can do it. So the only thing here required is you need to take the initiative and you need to take some calculated risk. The next quality of a successful decision maker is of sensitivity. So good decision makers seem to have some sort of antenna that makes them particularly sensitive to situations and others. Very important. जैसे हमने यहाँ पे एंटीना की एग्जांपल दी कि एक डिसीजन मेकर्स के पास दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एंटीना जो उनको सिग्नल दे देता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोगों की फीलिंग्स क्या हैं, व्हाट दे रियली वांट. एक सिचुएशन एनालिसिस वो कर रहे हैं, अपने वो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो जो गुड मैनेजर्स हैं, जो गुड डिसीजन मेकर्स हैं, डेफिनेटली they are highly sensitive people. So they sense those things even before those things happen. तो एक प्रिडिक्शन उनकी बहुत स्ट्रांग होती है. दे फोरकास्ट, वो पेशेंट को ही कर लेते हैं कि ओके फाइन, आने वाले दिनों में दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ये हो सकता है, इस तरह हो सकता है. सो दे हैव ए कैलकुलेटेड, उनकी एक फोरकास्टिंग है जिसको लेके वो आगे चलते हैं. सो दे हैव ए एंटीना जो कि उनको अवेयर करता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और बाकी जो लोग उनके इर्द गिर्द कॉलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनका एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, उनका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, और उनका एक. सो इट मीन्स दैट इन शॉर्ट a good successful decision maker has a very close eye on the internal and external environment of an organization. So ना सिर्फ ये है कि good successful decision maker वो organization के अंदर देख रहा है क्या हो रहा है, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी वो फोकस कर रहा है कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. Now talking about energy, people must have the energy and desire to make things happen. Again, this is really very important. So you should have the energy, you should have the power, and you should have that willingness. So this is really very important. Energy here means that you should have that motivation level, you should have that interest level to like ensure that you want to achieve something. So this is really very important. कि people who do not compromise, people who never compromise on quality, people who are highly persistent and they do not allow anybody to do the wrong work, and they always promote good work. So they are highly persistent. बहुत मुस्तकिल मिजाजी ऐसे लोगों में हमें नजर आ रही है. So they are full of energy. So people who are full of energy, they are mostly the successful decision makers. Then creativity. Successful decision makers tend to be creative thinkers. They develop new ways to solve problems. Of course, we are facing problems in our organizations every day. So how to overcome these problems? This is really very important.
for the decision makers. So decision makers are highly creative thinkers. So highly creative thinker means that they know how to think outside the box. So they have outside of the box kind of thinking. So they have different ideas in their mind. They have different solutions in their minds. They have different working methods in their minds, and they are able to take risk, and of course they are able to achieve the best from their employees. So they are willing to solve the problems, and they want to develop new ways to solve problems. So this is really very important, that a successful decision maker, he or she should be highly creative. Okay, now let us talk about the different decision making styles. The first style is A1. You solve the problem or make the decision yourself using information available to you at that time. So meaning that you are trying to solve the problem, you are making the decision yourself, और जो information उस वक्त आपके पास available है. Like for example कि एक decision आपने इस वक्त लेना है, तो इस वक्त आपके पास क्या information available है. Like for example अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, और या आप किसी मार्केट में हैं, तो आपने एक डिसीजन लेना है ऑन द स्पॉट. इमीडिएटली आपने एक डिसीजन लेना है, और वो आपने खुद डिसीजन लेना है. तो जब आप एक खुद डिसीजन ले रहे हैं और आपने ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है, तो डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन आपके पास उस वक्त होगी, उसकी मदद से यू डिसाइड कि क्या डिसीजन मैंने लेना है. सो इंफॉर्मेशन जो उस वक्त आपके पास अवेलेबल होगी, उसकी मदद से आप अपने डिसीजन मेकिंग आप करते हैं. The other style is you obtain the necessary information from your subordinates, then decide on the solution to the problem yourself. So this is a comparatively better style. जब हम देखते हैं कि you are involving others. Like for example, you are getting information from your subordinates. आप अपने टीम मेंबर्स से, आप अपने फॉलोअर्स से, आप अपने कॉलीग से, अपने सबऑर्डिनेट से आप नेसेसरी रिक्वायर्ड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उनसे आप लेते, और इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं योरसेल्फ. सो मीनिंग दैट कि डिसीजन आपने खुद लेना है, और उसकी जो इंफॉर्मेशन की जो बेस होगी, दैट इज फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स, फ्रॉम योर कॉलीग्स. You share the problem with relevant subordinates individually. Now individually आपने subordinates के साथ जो problem है उसको आपने share किया, getting their ideas and suggestions without bringing them together as a group. Now यहाँ पे एक this is very interesting कि आप individual अपने employees के साथ, अपने subordinates के साथ आप contact कर रहे हैं, उनको आपने इंडिविजुअली प्रॉब्लम बताई, और उनसे आपने हर एक की एक इंडिविजुअल सजेशन ले ली, और इंडिविजुअल सजेशन लेके आप आगे मूव करते हैं. और यहाँ पे इस चीज़ का आप ख्याल करते हैं कि ये तमाम एम्प्लॉयज़ को आपने ग्रुप की सूरत में बिठा के इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, बल्कि इंडिविजुअली आप तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ आप उनसे मिलेंगे और आप उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एंड यू विल डिस्कस द प्रॉब्लम विद देम. You make decisions that may or may not reflect your subordinates' influence. And then आपने क्या किया कि आपने मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ से इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन ली, और कलेक्टिवली नहीं ली, आपने इंडिविजुअली हर एक से अलग-अलग इंफॉर्मेशन ली अबाउट द प्रॉब्लम उनके साथ शेयर की, एंड देन यू मेक अ डिसीजन. और जो डिसीजन आप ले रहे हैं दैट मे और मे नॉट रिफ्लेक्ट योर सबऑर्डिनेट इन्फ्लुएंस, कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स ने जो आपको सजेशंस दी हैं उसको आप अपने डिसीजन के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट रियली डिपेंड्स ऑन यू. Now you share the problem with the subordinates as a group. Now this is another way कि आप एक ग्रुप की सूरत में सबऑर्डिनेट्स को आप एक जगह गैदर करते हैं, और उन तमाम के साथ मिल के आप एक उस प्रॉब्लम को शेयर करते हैं कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ अ इशू, दिस इज़ अ चैलेंज आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ फेसिंग. Collectively obtaining their ideas and suggestions. तो वो आप कोलेक्टिव ले रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आप उनकी डिस्कशंस करवा रहे हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहे हैं, और एक कोलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लाइक फॉर एग्जांपल अगर 30 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन 30% से आप
कलेक्टिव ले रहे हैं कि आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं, तो सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं और एक कलेक्टिव ओपिनियन आ रहा है. एंड then you make decisions that may or may not reflect your subordinate influence. Same case here again, that as a decision maker you are making a decision, but again your decision may or may not reflect your subordinates collective suggestion. Another decision making style is you share the problems with the subordinates as a group. Together you generate and evaluate alternatives and attempt to reach agreement on a solution. So this is like a deeper level where you are sitting with your subordinates as a group. आप मिल के आप कुछ आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, सॉल्यूशंस को फिर आप एवेलुएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को, एंड देन यू अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन अ सोल्यूशन कि म्यूचुअली आप एक एग्री करते हैं कि म्यूचुअली क्या होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल एज ए डिसीजन मेकर आप अपने ग्रुप से आपने सजेशन ली, उनके साथ आपने डिस्कस किया और ग्रुप के साथ मिल के आप एक म्यूचुअल कंक्लूजन पे पहुंचे. Your role is much like that of a chairman. You do not try to influence the group to adopt your solutions, and you are willing to accept and implement any solution that has the support of the entire group. So now you see that this has a very strong influence on your decision making. As a decision maker, you are not making a decision yourself only. What you are doing is you are sitting with a group. आप उनके साथ डिस्कस करते हैं, उनके साथ आप उस मुख्तलिफ सॉल्यूशंस को, अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट करते हैं, एंड देन एक फाइनल सॉल्यूशन पे आप पहुंचते हैं. एक फाइनल सॉल्यूशन पे आप सबका जब एग्रीमेंट हो जाता है तो आप उस डिसीजन को आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं. सो यू डू नॉट इंटरफियर और यू डू नॉट इम्पोज एनी डिसीजन. लाइक आप पहले से ऑलरेडी माइंड सेट करके नहीं गए हुए कि आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करना है, या पहले से आपका माइंड सेट है कि मैंने यस करनी है, मैंने नो करना है, मैंने किस किस्म का डिसीजन लेना है. सो हियर यू आर टोटली अनबायस्ड, और एक अनबायस्ड माइंड के साथ वहाँ पे जाते हैं आप, और जो ग्रुप मिलकर डिसाइड करता है उसी को आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं एज ए सक्सेसफुल डिसीजन मेकर. Now here we'll discuss that how are decisions made in the organization. Like for example, here we are talking about decision environments, and that includes certain environments, risk environments and uncertain environments. जैसे कि नाम से जाहिर है, certain environments कि you know what is going on, you know exactly कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या हो रहा है, इंटरनल कौन से फैक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ आपकी लाइक फॉर एग्जांपल एक आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हाट आर द थ्रेट्स. सो यू हैव ए वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. On the other side, you know that like for example, you know about the risk environment. Like for example, कि रिस्क इन्वायरमेंट में क्या है कि जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर एक रिस्क है, एक लाइक फॉर एग्जांपल उसमें लॉस होने के चांसेस हैं, कि लाइक फॉर एग्जांपल के सडन चेंजेस आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकती हैं, जो कि इन मोस्ट केसेस शायद अनकंट्रोलेबल भी हो सकती हैं. तो इस तरह का एक इन्वायरमेंट है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है. एंड देन अनसर्टेन इन्वायरमेंट्स. Now this is opposite to certain environments. Now uncertain environment में क्या है कि you do not know कि what will happen. So this is uncertainty, एक गैर यकीनी सूरत हाल है. So this is very close to the risk environment. Now we are continue our discussions on how are decisions made in an organization. So here we are talking about certain environments in depth now, that these environments, certain environments exist when information is sufficient to predict the results of each alternative in advance of implementation. तो आपके पास एक sufficient information है to predict the result of each alternative in advance of implementation, कि आपने एक alternative को implement करना है. Like for example, आपने एक alternative choose किया
उस अल्टरनेटिव को एज ए सोल्यूशन आपने चूज़ किया कि जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक अल्टरनेटिव को चूज़ किया। उस अल्टरनेटिव को जब आप चूज़ करके इम्प्लीमेंट करते हैं तो यू हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट कि उसके क्या रिजल्ट्स होंगे। इट मीन्स कि यू नो इन एडवांस एज ए प्रोएक्टिव मैनेजर, यू नो इन एडवांस कि जब आप ये अल्टरनेटिव अप्लाई करेंगे, ये सोल्यूशन अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। सो दैट अगेन शोज दैट दिस इज अ सर्टेन एनवायरनमेंट। Certainty is the ideal problem solving and decision making environment. So this is really a wonderful environment because you are certain, you are sure that these will be the results. So this is really very important. So you are getting benefits out of this certain environment because you know that what will be the results. Now talking about the risk environment. Now risk environment exists when decision makers lack complete certainty regarding the outcomes of various courses of action, but they can assign probabilities of occurrence. तो रिस्क में क्या है कि आप कैलकुलेशंस करते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क आप ले रहे हैं, बट डेफिनेटली एक आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आउटकम्स के बारे में आप लैक कर रहे हैं कि जो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट इनफ कि आपका जो आउटकम है वो क्या होगा। सो ऑफ कोर्स वहाँ पे एक कैलकुलेटेड रिस्क आप ले रहे हैं और आप एक प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं तमाम आउटकम्स के साथ, एंड देन प्रोबेबिलिटीज कैन बी असाइंड थ्रू ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स और पर्सनल इंट्यूशन। ऑफ कोर्स आप स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स यूज़ कर सकते हैं या एक अपनी पर्सनल इंट्यूशन, आप अपनी परसेप्शन के मुताबिक आप उसको प्रोबेबिलिटीज़ को असाइन कर सकते हैं। Now talking about uncertain environments. So uncertain environments exist when managers have so little information that they cannot even assign probabilities to various alternatives and possible outcomes. So now you see that this situation is more serious than risk environment. In certain environment you are confident. In risk environment you assign probabilities, you calculate the risk, but in case of uncertain environment this is totally unpredictable. So anything can happen anytime, and then uncertainty forces decision makers to rely on individual and group creativity to succeed in problem solving. So अनसर्टेनिटी ऑफ कोर्स फोर्स करती है डिसीजन मेकर्स को कि वो इंडिविजुअल और ग्रुप क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करें। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट्स वी आर फोकसिंग मोर ऑन individual and group creativity in order to solve the problems we are facing in an organization. Now talking about different types of decisions, the first one is the programmed decisions. So in it involves routine problems that arise regularly and can be addressed through standard responses. Programmed decisions वो हैं, like for example कि ये कब आप प्रोग्राम डिसीजंस ले रहे हैं जब आप रूटीन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल के रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको वो रूटीन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके ऑफिस में फॉर एग्जांपल अगर रूटीन में वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, या आपके ऑफिस में रूटीन में वहाँ पे कोई पर्सन जो है वो हैबिचुअल लेट कमर है, वो रोज़ लेट आ रहा है, तो आप क्या एक्शन लेंगे। तो ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज हैं आपके, पहले से आपने डिसाइड किया हुआ है कि ये अगर इवेंट होगा तो ये मैंने एक्शन लेना है, ये डिसीजन लेना है, अगर ये वाला इवेंट होगा तो मैंने ये वाला डिसीजन लेना है। सो आपके स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज हैं, आपके प्री प्लान रिस्पॉन्सेज हैं व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्राम्ड डिसीजंस। Non-programmed decisions, this is another type of decisions. It involves non-routine problems that require solutions specifically tailored to the situation at hand. तो non-routine problems, like for example ऐसी problems जो unexpected हैं, जो non-routine, like for example ऐसी problem जो आपने पहले कभी face नहीं की, या आप कोई rare problem है जो आप face करते हैं, so that is called non-routine problems. So that requires customized solutions.
सो वहाँ पे ऊपर आपके स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कस्टमाइज सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल कि जिस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने एक टेलर मेड डिसीजन लेके आना है, आपने कस्टमाइज डिसीजन लेके आना है, एक कस्टमाइज सोल्यूशन लेके आना है। अदरवाइज अगर आप स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन फेस लॉसेस। Now, how do intuition, judgment, and creativity affect decision making? So first we'll see that how intuition do that. So intuition means the ability to know or recognize quickly any situation. तो जब हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में इनका क्या रोल है, इंट्यूशन का क्या रोल है, तो इंट्यूशन इज द एबिलिटी टू नो और रिकॉग्नाइज क्विकली एनी सिचुएशन। सो आपकी एक इंट्यूशन है, आपकी एक सिक्स सेंस है, आपकी एक परसेप्शन है कि आप मुख्तलिफ इवेंट्स को, मुख्तलिफ सिचुएशंस को क्विकली एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने की एक आपकी एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। जजमेंटल हेरिस्टिक्स, सो सिंप्लीफाइंग स्ट्रेटजीज और रूल्स ऑफ थंब यूज्ड टू मेक डिसीजंस, सो इट मेक इट इजियर to deal with uncertainty and limited information, can lead to systematic errors that affect the quality and or ethics of decisions. तो जजमेंटल हेरिस्टिक्स में आप क्या कर रहे हैं कि रूल्स ऑफ थंब हैं, एक सिंपल स्ट्रेटजीज आपने रखी हुई हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आपने एक रूल ऑफ थंब है कि आपने एक अपना रिस्पॉन्स, एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स रखा हुआ है कि मैंने तो ऐसे ही करना है। सो आपका एक रूल ऑफ थंब है, आपने एक सिंपल स्ट्रेटजीज रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी एक हो सकती है कि ये सिस्टमेटिक एरर शो कर सकती है और डैट कैन अफेक्ट द क्वालिटी एंड एथिक्स ऑफ डिसीजंस, कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि मे बी आपने एथिक्स को फॉलो किया है नहीं या नहीं किया। सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जिसको सामने रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। Now talking about creativity factors, like creativity in decision making involves the development of unique and novel responses to problems and opportunities. Like for example, organization मुख्तलिफ problems और opportunities को face कर रही है, तो उनको address करने के लिए आप unique decisions लेते हैं, आप creative decisions लेते हैं, आप एक novel responses हैं, आपके बिल्कुल different responses हैं। So like this is really very important. So human resource is the most important asset of an organization. We also call it intellectual capital. So humans, they have wonderful brains. So why not we get the best out of these human brains? So in these creativity factors, creative solutions are given by the employees who are working in that organization. Creativity is especially important in a dynamic environment full of non-routine problems. तो जहाँ पे ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, सो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली यू नीड टू हैव मोर क्रिएटिव पर्सन्स जो कि बिल्कुल एक यूनिक सॉल्यूशंस लेके आएँ, बिल्कुल एक ऐसे सॉल्यूशंस लेके आएँ जो कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन you bring in totally new ideas, and then this is really very important because जो non-routine problems हैं उनको routine decision making style के साथ of course solve नहीं किया जा सकता. So that is why this creativity is really very important for any organization, particularly in the public sector of Pakistan. Now we will discuss the reasons for decision making failure. कि decision making के failures क्यों होते हैं, what are the root causes, and the first most important reason of a decision making failure is managers copy others. Now let us discuss that. Like for example, आपकी organization के अंदर एक problem है, like for example आपकी employees जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, एज़ पर स्टैंडर्ड्स नहीं है। सो अगर आपके यहाँ लेज़ी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अपना काम जो है इन टाइम नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज ए मैनेजर अगर आप वही मेथड यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी अगर मेरे पेट में दर्द है तो आप मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं, तो क्या वही मेडिसिन तमाम लोग ले सकते हैं जिनके पेट में दर्द है? ऑफ कोर्स नॉट। तो इट मीन्स दैट कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, कि अगर आप एक ही सोल्यूशन सब लोगों के लिए अप्लाई करते हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, इवन अगर प्रॉब्लम सेम भी है, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एम्प्लॉयज़ लेट आते हैं तो उन सबको मैनेज करने के लिए, उनको पंक्चुअल करने के लिए वन मेथड कैन नॉट बी यूज। सो व्हेन मैनेजर्स कॉपी अदर्स दिस क्रिएट प्रॉब्लम बिकॉज दैट इज नॉट ए कस्टमाइज सोल्यूशन। सो यहाँ पे ज़रूरत क्या है कि आपने कस्टमाइज सोल्यूशंस देना है, बिकॉज नो टू ह्यूमंस आर सेम। नो लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एक जैसे नहीं होते। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं दे हैव डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। सो डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से, उनकी डिफरेंट परसेप्शंस की वजह से आपको टेलर मेड सोल्यूशंस लेके आने हैं। तो अगर आप दूसरों के सोल्यूशंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेम प्रॉब्लम की सूरत में अप्लाई करेंगे तो this could lead to a big mistake. And then managers tend to emphasize problems and solutions rather than successful implementation. So this is again a reason for decision making failure, that managers in the public sector of Pakistan, what they do is they tend to emphasize the problem and solutions. तो प्रॉब्लम को फोकस कर रहे हैं, सोल्यूशन को फोकस कर रहे हैं, rather than successful implementation. तो होना तो ये चाहिए कि प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करें, सॉल्यूशंस को भी आप फोकस करें, और उसके साथ साथ आप सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो एज ए मैनेजर अगर आपका फोकस ज़्यादा प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की तरफ होगा बजाय इम्प्लीमेंटेशन के, तो डेफिनेटली दैट कैन लीड टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग फेलियर। एंड फाइनली मैनेजर्स यूज पार्टिसिपेशन रेयरली। Again, a big mistake being made by the managers who are serving in the public sector of Pakistan, that so they like it is rare that the decision makers or the managers they use participation. Like for example, they are not getting help from others, they are not getting suggestions from others, they are not focusing on the other's point of view. So जब आप feedback को ignore करते हैं, जब आप अपने colleagues के, अपने subordinates के, अपने junior seniors के point of view को अगर आप ignore कर रहे हैं और आप एक individual decision making कर रहे हैं, अपनी self perception के मुताबिक decision making कर रहे हैं, तो of course that can lead towards a decision making failure. Now talking about the decision making checklist, what you need to do, the most important thing is first of all you need to see that is my action legal. तो जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपका जो एक्शन है that is legal or illegal. So this is really very important, and if you are in a doubt, if you are not sure, you need to consult a legal advisor जो कि आपको बताएगा कि आपका जो एक्शन है whether that action is legal or illegal. Is it beneficial? जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मस्ट सी दैट कि जो डिसीजन आपने लिया है क्या वो बेनिफिशियल है भी कि नहीं। तो अगर आपका डिसीजन बेनिफिशियल नहीं है तो डेफिनेटली एवरी डिसीजन हैज ए कॉस्ट। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी एक कॉस्ट है, उसमें डेफिनेटली आपका टाइम इन्वॉल्व है, उसमें तमाम रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं। आप तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक कोई डिसीजन बेनिफिशियल नहीं होगा फिर डेफिनेटली अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट आप नहीं ले रहे, एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी नीड टू चेक दिस एज वेल। हाउ वुड आई फील इफ माई फैमिली फाउंड आउट अबाउट दिस? सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखना चाह रहे हैं कि आपका डिसीजन जो है कितना एथिकल है, कितना करेक्ट है, कितना आपकी जो एथिकल बाउंड्रीज हैं, जो दीन इस्लाम ने हमें बाउंड्रीज बताई हैं, उस दायरे के अंदर रहते हुए क्या वो डिसीजन है कि नहीं। तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप ये सोचें कि अगर इस डिसीजन के बारे में मेरी फैमिली को पता चलता है तो वो क्या फील करेंगे। सो उनकी फीलिंग अगर पॉजिटिव होगी तो इट मीन्स दिस इज़ अ गुड डिसीजन, और अगर उनकी फीलिंग नेगेटिव होगी तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। हाउ वुड आई फील इफ माई डिसीजन वर प्रिंटेड इन द लोकल न्यूज़पेपर?
दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका डिसीजन न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जाता है तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स होंगी। सो ये जो हमने लास्ट 2 पॉइंट्स जो डिस्कस किए कि अगर आपको फैमिली के नॉलेज में आता है आपके डिसीजन का जो आपने लिया है, और अगर वो मीडिया के ऊपर आपका डिसीजन आ जाता है तो आपकी फीलिंग्स क्या होंगी। तो अगर तो आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं तो इट मीन्स दैट दैट डिसीजन इज एथिकल, दैट डिसीजन इज अ करेक्ट डिसीजन। और अगर आपके एक नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं तो इट मीन्स दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद दैट डिसीजन जिसको रिकंसिडर करने की आपको जरूरत है। Now we will move towards delegation, and delegation is defined as, so it is the process that makes management possible, because management is the process of getting results accomplished through others. So जैसे management में बात करते हैं कि getting the best out of others, so this is really very important कि आप delegate करते हैं ताकि आप इंश्योर कर सकें कि आप अपने एम्प्लॉई से, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने टीम मेंबर से बेस्ट रिजल्ट्स आप लें। सो बेस्ट पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स को इंश्योर करने के लिए डेलीगेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। Now, unless you delegate tasks to your subordinates, your team will become inefficient and demoralized. So this is really very important कि अपने टीम मेंबर्स को आप डेलीगेट करें, आप उनको अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डेलीगेट करें, आप उनको मुख्तलिफ पावर्स डेलीगेट करें, आप उनको रिसोर्सेज उनको दें ताकि वो खुद से अपनी मर्जी से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। सो थिंग्स लाइक दैट। सो व्हेन यू डू इट योर एम्प्लॉयज़ आर हाईली मोटिवेटेड, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू डोंट डू इट they are demotivated, they are demoralized, or maybe they become inefficient. So I not only use all the brains I have, but all I can borrow. Woodrow Wilson says this thing. So this is really very important कि आप अपनी brains को तो use कर रहे हैं पर इसके साथ साथ आप brains को borrow करने की बात करें। So definitely this is really very important कि when you delegate, of course you are empowering your employees, you are making them loyal. So when you are empowering your employees, you are making them loyal, आप अपने employees को involve कर रहे हैं decision making के अंदर, so this can give you wonderful results. Now here the question arises that why we need to delegate in the public sector of Pakistan. So first most important reason is globalization. So world is a global village, so nobody can survive in, like for example, without any competition. Like for example, we have a tight competition in the market, so whatever you do you have competitors in the world. So it meaning that we must delegate in order to produce the best quality. Information technology explosion, of course information is radically changing, technology is rapidly changing. तो जिस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो जिस तरह से इम्प्रूव हो रही है, एक हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजन की हम बात करते हैं कि रेडिकल चेंजेस आ रही हैं टेक्नोलॉजी में। सो डेफिनेटली अगर आप उसको मीट करने के लिए, उसको मार्केट में कम्पीट करने के लिए, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू डेलीगेट। इंक्रीज्ड मर्जर्स हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मर्ज कर रही हैं। डेफिनेटली in order to like of course do the best in this situation, you need to delegate. Heightened competition, of course very important reason that जो हम बात करते हैं अपने competitors की, तो जो competition है वो बहुत बढ़ गया। हम बात करते हैं पाकिस्तान में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, जब तक वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देंगे उस वक्त तक दे कैन नॉट कम्पीट इन द मार्केट। सो मार्केट में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, जो आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस के प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे डेफिनेटली डेलीगेशन की ज़रूरत है। लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट अफोर्ड डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एक वन मैन शो है, एक ही पर्सन ने तमाम डिसीजन लेने हैं, तो डेफिनेटली उस पर्सन की एक कैपेसिटी है, उसका एज ए ह्यूमन उसकी एक कैपेसिटी है, उससे आगे वो नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली जब डिसीजन मेकिंग एक ही पर्सन ने करनी है तो डेफिनेटली मुख्तलिफ तरह से उसके पास फाइल्स आ रही हैं, इशूज़ आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो तमाम इशूज़ को, चैलेंजेस को इमीडिएटली एड्रेस करना उस पर्सन के लिए मुमकिन नहीं है। सो ऑफ कोर्स दैट टेक्स टाइम। तो जो आप टाइम ज़्यादा लेंगे वैसे वैसे आपको
कंपटीशन जो है अब आपका टाइट होना शुरू हो जाएगा, और डेफिनेटली आप जब कंपटीशन टाइट होना शुरू हो जाएगा तो ऑफ कोर्स एक दिन आएगा कि जब आप मार्केट में बीट नहीं कर सकेंगे। सो एक क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, क्वालिटी डिसीजंस के लिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वी मस्ट डेलीगेट आवर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड देन हायर एक्सपेक्टेशंस ऑफ नियरली एवरी कस्टमर। नाउ कस्टमर्स जो हैं इस वक्त जितने ज़्यादा उनका अवेयरनेस लेवल है, इससे पहले हमें पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कस्टमर है उनका जो एक्सपेक्टेशन लेवल है दैट इज़ ऑन दी हाईएस्ट लेवल नाउ। तो कस्टमर के हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन लेवल को सामने रखते हुए वी मस्ट डेलीगेट, बिकॉज क्वालिटी देने के लिए, अपने एम्प्लॉय से बेस्ट काम लेने के लिए उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, उनको डेलीगेट करने की ज़रूरत है। Now there are certain tasks one should not delegate. Like for example, जैसे आप स्लाइड्स में देख रहे हैं कि these activities are sensitive and should not be delegated. For example, hiring firing. जब आप हायरिंग फायरिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप कोशिश कर रहे हैं कि आप यू शुड सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जब आप फायरिंग कर रहे हैं दिस इज अगेन अ हाईली सेंसिटिव डिसीजन, क्योंकि सिर्फ आप जिस पर्सन को फायर कर रहे हैं, जिसको आप टर्मिनेट कर रहे हैं, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, उसका एक ग्रेट इम्पैक्ट है जो सर्वाइवर्स होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, वन थिंग। और सेकेंडली एक ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट रिप्यूट जो है प्लस माइनस होती है। तो डेफिनेटली जब आप हायरिंग फायरिंग कर रहे हैं तो दीज आर द टू मोस्ट सेंसिटिव एरियाज, और इनको कोशिश करें कि दीज शुड नॉट बी डेलीगेटेड। पे इशूज लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स क्या होंगे, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स क्या होंगे, पे पॉलिसी क्या होगी। सो पे से रिगार्डिंग जो तमाम इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए डेफिनेटली आप कोशिश करें कि आप खुद उसमें डिसीजन लें। आप अपनी उसको जितना ज़्यादा डेलीगेट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। एंड देन पॉलिसी, तो जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसी इश्यूज हैं, उसको आप डेलीगेट कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं एंड इसके लिए मोस्ट एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, मोस्ट एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ओके, आई बिलीव दैट कि आज के लेक्चर से आपने काफ़ी लर्न किया होगा। आज हमने डिफरेंट इश्यूज़ पे बात की, हमने देखा कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से हम डेलीगेट कर सकते हैं मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को। हमने ये देखा कि डेलीगेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, और हमने लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा कि देयर आर सर्टेन एरियाज जिसमें डेलीगेशन नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में, और जो एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट या सस्पेंड किया जाता है, या पॉलिसी मेकिंग में। सो इस तरह के जो स्ट्रेटजिक इश्यूज़ हैं या स्ट्रेटजिक मैटर्स हैं उसके अंदर डेलीगेट करना जो है वो रेकमेंड नहीं किया गया। उसके अलावा ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन और टफ कंपटीशन द मार्केट और हाई कस्टमर अवेयरनेस, इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको मीट करने के लिए डेफिनेटली वी मस्ट डेलीगेट आवर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू आवर एम्प्लॉयज़। सो आई होप दैट कि आज के लेक्चर से आपने काफ़ी लर्न किया होगा। इंशाल्लाह सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।